Very good morning, dear students. Today we are going to start new chapter, Consumer Protection, Unit 12. This is the last unit of your book. So, what is the main learning objectives or main concepts which we have to study in this chapter? First of all, Consumer Protection concept importance. Second is the Consumer Protection Act 1986, in which we have to study concept, we have to learn concept of concept, consumer rights, consumer responsibilities, who can file a complaint and against whom, legal redressal machinery and remedies available to the consumer. Third point is consumer awareness. Okay, so I think this topic is deleted from your syllabus. I will check. Okay, let's start. First of all, what is the meaning of consumer protection? So students, it refers to the steps taken to protect the consumers against the unfair practices of the producers and the sellers. It means consumers को कुछ unfair practices और unfair हैपनिंग से उनको सेव करना है, जिसकी वजह से उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. ठीक है, सो टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोसीजर्स एंड सेलर्स इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. सो टुडे कंज्यूमर आपको पता है, दिस इज कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. सो ही इज एट द सेंटर स्टेज ऑफ ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज. सो स्टूडेंट्स, इनको हमें प्रोटेक्ट करना है और all concerns and organizations try to increase their sales by all possible means. मतलब वो सब लोग possible जो भी कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन अगर वो fair हैं, some of the means adopted to increase sales are such as the interest of both the producers and the consumers. For example, improvement in quality of the product. Second is reduction in price. Third is like clear and decent advertising and after sales services, etc. So these type of practices are fair, but on the other hand, some of the methods adopted to increase the sales are such as the subserve the interest of the producers, but the same are against the interest of the consumers. So in other words, like consumers are exploited thereby, like adulteration of consumer goods, poor quality of goods and services, misleading advertisements, short measures and underweight goods, creation of artificial scarcity of hoarding of goods. ठीक है, तो ये सब एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कंज्यूमर्स को इनके थ्रू, जस्ट टू इंक्रीज देयर सेल्स. And so there are some means of increasing sales by which the producer enhance their sales and multiply their profits. But these measures cannot be resorted to on a permanent basis, as their very nature happens to be anti-consumer. So these measures result in the exploitation of the consumer. So they have to protect it against such exploitation to plunge the unfair practices of the producer who are propelled. Actually क्या है कि consumers जो है वो aware ही नहीं है. Actually remedies lies in the Consumer Protection Act 1986. हमारे पास remedy है इसके लिए. Consumer Protection Act 1986 जो है हमारे पास है, जिसके अंडर कोई भी कंज्यूमर जो है वो इसके अगेंस्ट जो है कोर्ट केस कर सकते हैं. ठीक है, और ये सब प्रैक्टिसेस मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ फिर से. अडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, सेकंड है पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, शॉर्ट मेजर एंड अंडरवेट गुड्स एंड क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ होर्डिंग ऑफ गुड्स. सो दीज आर द अनफेयर प्रैक्टिसेस जो कि प्रोड्यूसर कर रहे हैं कंज्यूमर्स के साथ. कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी हैं. सो some examples of consumer exploitation in India. Like first is the manufacturer of sunflower oil claims in the advertisement published in a national newspaper that his oil is rich in vitamins, mineral and protein. अब उसने oil में ये सब बोला है कि उसके जो oil है वो इन चीजों से rich है. On testing clear हुआ कि all claims were found false. तो ये सब false था. Okay. ऐसे ही second example है, many cloth manufacturer mark their product is poly cotton. मतलब वो उस पे मेंशन कर देते हैं कि poly cotton है. अब poly मीन्स होता है polynostic, but
यहाँ इसके अकॉर्डिंगली, इनके अकॉर्डिंगली होता है पॉलिस्टर। एक्चुअली पॉली मीन्स पॉलिनोसिक, नॉट पॉलिस्टर। अब पॉलिस्टर के भी अगर क्लॉथ है तो उसमें पॉलिनोसिक, पॉली वर्ड यूज किया गया है। तो ये क्या होता है कि कंज्यूमर्स को थोड़ा मिसगाइड करने के लिए इस तरह की प्रैक्टिसेस की जा रही है। सो द फॉर्मर मटेरियल इज वेरी चीप, एक्चुअली पॉलिस्टर इज वेरी चीप एज कम्पेयर टू द लेटर, जो एक्चुअली मेन पॉलिनोसिक होता है उसके कंपेरेटिवली बहुत चीप क्वालिटी का होता है। सो एंड द कंज्यूमर आर नॉट अवेयर ऑफ इट, और कंज्यूमर्स को इनके बारे में नॉलेज नहीं है। And third example is instant noodles can only be sold in the packing of 100 grams, but in case of some manufacturer there are just 80 gram noodles in packet. अब यहाँ देखो हर पैकेट में 20 ग्राम वेट जो है वो कम किया गया है, बट यहाँ 100 ग्राम की पैकिंग शो कर रहे हैं, तो ये भी एक अनफेयर प्रैक्टिस है। ओके, सो अ वुमन got admitted in a civil hospital for an appendix operation, but the doctor treated her negligently and removed her gallbladder instead of the appendix, and as a result woman died. यहाँ पर उसने गलत ऑपरेट कर दिया उसका। So ये practices जो है, these practices are unfair for consumers. इन्हीं के अगेंस्ट जो है कंज्यूमर्स को स्टेप लेने हैं। सो फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। So you know very well the consumer is the king of the market. So if the consumer is removed from the market, so nothing remains. आपको पता ही है कि अगर मार्केट में कंज्यूमर नहीं है तो will be मार्केट क्या हो जाएगी, जीरो। So it can be said that consumer is the basis of the market, the main base है उसका। When the consumer happens to be absolutely important, it is indeed very necessary to protect him from any exploitation in the market. तो इसको बचाना और इसको किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचाना भी एक जरूरी है। सो दिस विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ। ये दोनों के लिए सही है, एक तो लॉन्ग टर्म बिजनेसेस के लिए एंड सेकेंडली फॉर कंज्यूमर्स। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज highlighted first of all from the consumer's point of view, and second is the from the business point of view. So first of all we will start from the consumer point of view. Consumer के point of view से first of all हम इसके importance check करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस। होता क्या है, जनरली कंज्यूमर जो है अवेयर ही नहीं है अपने राइट्स को लेके। सो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस इग्नोरेंस दैट दे कैन नॉट रेज देयर वॉइस। वो अपनी आवाज नहीं उठाते इस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, जिसकी वजह से दे बियर दिस एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, सो वो नहीं सोचते बहुत ज्यादा सीरियसली, मींस वो उनको लगता है कि सिर्फ हमारा एक पर्सन के लिए अगर ये अनफेयर हुआ है तो दैट्स इट, इससे कोई, बट उनको नहीं पता कि एक एक करके सबके साथ ये एक्सप्लॉयट, सभी क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। So hence they remain inactive in this respect. So therefore it has become necessary in public interest that they should be educated about their rights so that they become activated. उनको उनके rights के बारे में educate करना है ताकि वो actively उसको अपने rights को जो है वो use कर सके। Second point is unorganized consumers. Unorganized means यहाँ क्या है कि organized means होता है group of the person. अगर ग्रुप ऑफ पर्सन हैं और वो इकट्ठे होकर सब किसी भी चीज के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छे से आपको मिलता है, आपको पता ही है। बट अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर मींस वन अलोनली, मतलब अगर एक एक पर्सन ऐसे सोचेगा तो वो एक एक पर्सन जो है उसको उतना अच्छा वो अपने को हाईलाइट भी नहीं करता, सेकेंडली उसको वो रिजल्ट्स भी अच्छे से नहीं मिलते। सो कंज्यूमर्स आर अनऑर्गेनाइज्ड, आपको पता ही है, एंड दिस फैक्ट अलोन highlights the importance of consumer protection. So a single consumer raising his voice against exploitation is not as effective as the voice of the organized consumer. जितना कि एक organized consumers जो है वो कर सकते हैं, सिंगल कंज्यूमर जो है अपने अगेंस्ट जो भी हो रहा है उसके लिए इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं लेके आ सकता। सो फॉर the consumer have not shown such an attitude that they should raise their voice in an organized manner. तो उनको ये करना है कि ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपने वॉइस को यहाँ पर रेज करना है। सो देयरफॉर इट इज इन आवर इंटरेस्ट दैट दे शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। वंस दे गेट ऑर्गेनाइज्ड देन दे वुड नॉट नीड एनी आउटसाइड हेल्प। उनको अब और कोई हेल्प नहीं चाहिए होगी अगर वो एक बार इकट्ठा हो जाते हैं। सो दे विल देमसेल्फ प्रोटेक्ट, वो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करेंगे, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। सो कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एनकरेजेस द कंज्यूमर्स टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। ओके, सो थर्ड पॉइंट, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। सो आजकल हो क्या रहा है कि लार्ज स्केल पे एक्सप्लॉयट किया जा रहा है कंज्यूमर्स को।
इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल अडल्ट्रेशन इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन. अडल्ट्रेशन मीन्स होता है मिलावट करना. आपको पता है कि हर चीज में आजकल कुछ ना कुछ अडल्ट्रेशन करते हैं. सो इन्फीरियर क्वालिटी. अब उसके मेंशन है कि ये जो है बहुत अच्छी क्वालिटी है, बट स्टिल उसके अंदर जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है. जो प्राइजेस हैं वो गुड क्वालिटी के हैं, बट स्टिल जो मटेरियल है वो इंफीरियर क्वालिटी का हो सकता है. ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट आपको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव सी एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है जस्ट फॉर मिसलीड द कंज्यूमर्स, ताकि वो उनको एक बार उनको परचेज कराया जाए. सो बट लेस नेक्स्ट है आपके पास लेस वेटिंग एंड लेस मेजरिंग. इस वेट जैसे 100 ग्राम लिखा होता, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी इसमें बताया है नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स में, बट उनके अंदर जब उनको वेट किया तो वो 80 ग्राम था. तो इस तरह से अंडर वेटिंग एंड लेस मेजरिंग, ये भी इस तरह से भी कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. देन क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ थिंग्स. Okay, so consumer protection is absolutely necessary in order to get rid of such exploitation. Secondly, इसमें हमें देखना है from the business point of view. So business needs consumers as much as consumers need business. अगर business को long term के लिए चलाना है, so therefore business should be also join hands in protecting consumer interest. अगर एक बार कोई भी customer जो है उनका product पर चलता है, उस केस में क्या होता है कि अगर वो तभी उसको नेक्स्ट टाइम भी परचेज करेगा जब वो उसके लिए सेटिस्फाई रहेगा. सो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस. एवरी बिजनेस को चाहिए वांट्स टू एंजॉय लॉन्ग एग्जिस्टेंस. सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन बिजनेस firms provides absolutely satisfaction to the consumers. Okay, a firm that succeed in satisfying the consumers themselves turn to such a firm for buying their products time and again, and they tell other also about their satisfaction. अगर वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे कंज्यूमर्स जो है वो बने रहें और कंज्यूमर जो है वो बार बार उनके प्रोडक्ट को परचेज करें, तो उनको शुरू से ही अपने जो बिजनेसेस हैं उनको लॉन्ग टर्म को सोच के ही अपने प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करना है और अच्छी क्वालिटी उनको देनी है. नेक्स्ट है बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज. एवरी बिजनेस यूजेस वेरियस रिसोर्सेज, जैसे कि मिनरल है, मटेरियल है, मशीनरी है, सॉरी ह्यूमन कैपिटल, ये सब चीज, ऑल दीज रिसोर्सेज आर सप्लाइड बाय सोसाइटी. So from this point of view, it becomes the responsibility of business to provide better facilities to the society. And क्योंकि ये सोसाइटी से ही सारे आपको रिसोर्सेज उनको मिलते हैं और उनको आगे जो प्रोडक्ट देना है वो भी सोसाइटी को देना है. So by doing this and through the medium of the consumer protection, business gets an opportunity to discharge its responsibility towards society. Next point is the social responsibility. So it is the social responsibility of business to protect the interest of its owner and all other related constituents, like जैसे एम्प्लॉइज हैं, कंज्यूमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, ये सब सोसाइटी के ही लोग हैं. सो कंज्यूमर हैपन टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द रिलेटेड constituents. Okay, so therefore more attention should be paid to the protection of their interest. Doing this is nothing but consumers protection. Okay, so therefore business through the medium of consumer protection can discharge social responsibility to a large extent. Next is the moral justification. It is the moral responsibility of business to take care of the consumer's interest. ये हमारी एक moral responsibility भी है. So the business should keep away from the evil of adulteration, inferior quality, misleading advertisement, hoarding of goods, profiteering, black marketing, less weighting and measuring. So by doing so that they can discharge their moral responsibility. And it can be said that business is helping the causes of consumer protection. And last point is government intervention. By ignoring consumer interest, अगर ignore करते हैं consumer interest को, तो business is almost inviting government intervention. Government intervention is defense of consumer interest, is certainly a setback for any firm. This is why every firm wants to avoid such a situation. Such a situation can be avoided only if the consumer interest is taken care. So during doing so means taking care of consumer protection by being a partner in protecting consumer interest. Government intervention can be avoided and reputation of the firm can also be maintained. Okay? And these were the points of the importance of consumer protection. Now the next topic is the legal protection of the consumer. तो किस तरह से हमारे पास राइट्स हैं, कंज्यूमर के पास राइट्स हैं इन सबके अगेंस्ट अपने वॉइस रेज करने के लिए. तो फर्स्ट पॉइंट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ये आपका सबसे मेन
जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंगली इसके अंडर रहते हुए कोई भी कंज्यूमर जो है अपनी प्रोटेक्शन जो है वो इजीली कर सकता है. सो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज बीन फोर्स सिंस 1986 फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड प्रोस्पेरिटी. ये स्पेशली कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट जो है वो बनाया गया है. सो दिस लॉ ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, deficient services, unfair practices, and consumer exploitation. Okay, and courts have been established under this law to provide the benefits to the consumers by protecting their rights. अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग बेनिफिट ले सकते हैं, इसके अंडर वो कोर्ट में जा सकते हैं और जो भी जिसके भी अगेंस्ट वो कोर्ट केस करना चाहते हैं. सो दीज कोर्ट आर नोन एज 3 टायर मशीनरी. इसमें भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट फॉरम है, स्टेट कमीशन है एंड नेशनल कमीशन है जो इसमें टेक केयर करते हैं कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को. ठीक है, और प्रोविजंस हैज आल्सो बीन मेड टू एस्टैब्लिश कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. इसमें कुछ प्रोविजंस हैं एंड फॉर एजुकेटिंग द कंज्यूमर्स एंड इंकरेजिंग कंज्यूमर्स कोर्स. उनको इनकरेज भी करते हैं और प्रोटेक्ट और एजुकेट भी करते हैं. नेक्स्ट आपके पास जो हमारे पास है सेकेंड लीगल प्रोटेक्शन, that is the Contract Act 1982. According to this act lays the responsibility of the contracting parties. This act also explains the conditions under which the aggrieved party can move against the defaulting party. तो ये defaulting party के against यहाँ पर आप केस कर सकते हो. Next आपके पास जो केस आ रहा है that is the Sales of Goods Act 1930. So this act also provides protection to the buyer in case of goods purchased are not according to the condition of the sale. अगर जो कंडीशन बोली गई है उसके अकॉर्डिंगली सेल नहीं हुई है तो ये आपका एक्ट जो है 1930 अप्लाई होगा. एंड नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955. सो फॉलोइंग आर सम ऑफ द चीफ एम ऑफ दिस एक्ट. इसके अंदर जो एक्ट मेन चीफ फीचर्स हैं क्या हैं? कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, उसके ऊपर कंट्रोल करना है. सेकेंड इज द कंट्रोल ओवर द टेंडेंसी टू इंक्रीज प्राइसेस. Third is the control over the unsocial activities like profiteering, hoarding and black marketing. इन सबको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट जो है आपका यूज होता है इसके अगेंस्ट अगर आपको कोई केस करना है. नेक्स्ट है द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937. So under this act there is a provision to check the quality of the agricultural produce. For example, products are placed in separate categories according to the standards. So in this way, products are marked according to the standards and that makes it easy to recognize them. So under this act, there is different mark to indicate the quality of the product. So this mark is known as ag mark. इसको ag mark हम show करते हैं. ठीक है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में यूज होता है ये आपका ag mark. ओके, और ag mark लिख के भी अगर उसमें कुछ क्वालिटी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये एक्ट जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए है मेनली 1937. ओके, तो ये चेक क्या करता है, इसमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी क्वालिटी कैसी है. अगर उनकी क्वालिटी में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसके अगेंस्ट आप इस अंडर दिस एक्ट आप केस कर सकते हो. नेक्स्ट है द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954. जो खाने की चीजें होती हैं अगर उनमें आपको लगता है कि कुछ मिलावट है, कुछ अडल्ट्रेशन है, सो अंडर दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट अगेंस्ट अडल्ट्रेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स स्पेशली. Next, the Standard of Weight and Measures Act 1976. So under this act, there is a provision to protect consumers' interest against less weighting and measuring. अगर weight कम है लेकिन ऊपर mention ज़्यादा किया हुआ है और ऐसे measuring अगर कम है और mention ज़्यादा है तो उस केस में आप इस एक्ट के अंदर रह के इसको यूज कर सकते हैं. Next है the Trademark 1999. So this act has replaced the Trade and Mercantile मार्क एक्ट 1958. उसको ही इन्होंने रिप्लेस करके ये न्यू एक्ट बनाया है. सो दिस एक्ट प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर फॉर रॉन्ग यूज ऑफ ट्रेडमार्क. अगर ट्रेडमार्क लगा है और उसके बावजूद जो आपके जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है क्वालिटी वाइज, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, देन वी कैन गो विद दिस एक्ट. नेक्स्ट द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. So this act has replaced the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969. ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स अगेंस्ट द एक्टिविटीज hindering competition by businessmen in the market.
मतलब कंपटीशन में रहते हुए अगर वो कुछ इस तरह से गलत प्रैक्टिसेस करते हैं जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर्स को कुछ इस तरह का हार्म किया है जो कि अनफेयर है, उसके लिए ये आपका एक्ट है। नेक्स्ट है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। So under this act, the Bureau of Indian Standards has been established. It has two major functions. इसके क्या है? First is it decides the quality standard of various products. Company that fulfills these standards is allotted ISI mark under the BIS scheme. So this shows the product happens to be high quality. अब ISI mark जो है वो high quality को mention करता है, ठीक है? और अगर इसके अंदर रहते हुए भी अगर कुछ fair practices नहीं हो रही हैं, उस केस में आप इसको इस एक्ट के अंदर आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है इट हियर्स द कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स अगेंस्ट ISI मार्क प्रोडक्ट्स। आप इसके अंदर उन प्रोडक्ट्स के जो है वो कंप्लेंट कर सकते हो जो ISI मार्क जिनके ऊपर मेंशन है, मार्क है। सो अ सेपरेट ग्रीवेंसेस सेल हैज आल्सो प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस, ठीक है? इसके लिए ग्रीवेंसेस सेल भी बनाया गया है एक सेपरेट, जिसके ऊपर आप जाके कुछ भी कंप्लेंट्स अपनी करवा सकते हैं। So students, आज के लिए हम इतना ही करेंगे. Next topic we will discuss tomorrow. So thank you students. Learn and write this topic in your peer notebook. Thank you so much. Have a nice day.